Hello all, this is Leena Khandekar, founder and director, International Lee's Beauty and Spa Institute. As you all know that I am coming up with a series of interviews with beauty industry experts, and reason behind this is to understand the latest trends, career opportunities in beauty, hair, nail, makeup and spa fields. So I would like to begin with my today's interview with Mr. Uday Takkeji, who is a founder and director of U Takke's Academy, based in Mumbai, and an international hair designer. Thank you so much, sir, for being with us today. Thank you. Uday Takke, he is an international trained hair designer. Uday Takkeji's salon, spa, academy has involved the hairdressing and cosmetology industry in India and has pioneered the concept of creative and stylish hairdressers, going beyond the known industry standards to make expertise on a global scale. However, it would be quite interesting to have a look at career graph and achievements of the dynamic and talented backbone of Academy, Mr. Uday Takke. His major professional qualifications are Diploma in Cuts and Color by Saks Academy London, Diploma in Colors by Art Academy Malaysia, Diploma in Master Cutting by Toni & Guy Singapore, Diploma in Advanced Cuts and Colors by Toni & Guy Hong Kong, and many more. All this knowledge and expertise he has acquired is being to coordinate with his work and fitness and efforts always show his golden results, and these are some of it. So, and his achievements also I would like to tell you all, is appointed as international jury for OMC Hair World Championships, worked in Paris Europe Cup 2016 as hair expert jury, felicitated by Kalashri Award and doctorate from Kerala Association, the Best Teacher Award from Beauty Wizard, and received award as a young achiever by Mr. Balasaheb Thackeray. That's so amazing. And many more. So worked for esteemed brands in hair grooming industry like Strix, Godrej, Wall, Gillette, P&G, Star Cosmetics, Iconic, Noel Colors, and the list is still on. So we can say Uday Takke is a main source of substance. And sir, thank you so much for your valuable time today for this interview with us. Thank you so much. Thanks for calling me. Thank you, sir. सर, मैं जैसे हम आज इस इंटरव्यू में कुछ सवाल करने वाले हैं आपसे, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि ब्यूटी एज अ करियर, इसका इम्पोर्टेंस आज की डेट में क्या है? क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइवेट है या फिर अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स पे भी ये शुरू हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्यूटी इस विषय को कॉलेजेस, स्कूल्स में भी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो हम भी चलाते हैं. तो आप क्या कहना चाहोगे सर? इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ जमाने पहले, कुछ सालों पहले इस फील्ड को देखने का नजरिया लोगों का अलग था. जैसे अगर हम हेयर ड्रेसिंग या बार्बरिंग कर रहे हैं या अगर आप आईब्रोज करते हो तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप इस फील्ड में जा रहे हो. ये कुछ साल पहले ऐसा था भी कि घर पे बैठे बैठे क्या करें. बहुत सी महिलाओं को मैंने जब बात किया तो ऐसा था कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है घर पे, एक डिवोर्स है या जो भी, किसी के कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं तो घर पे बैठ के क्या करें, क्योंकि हस्बैंड घर से बाहर निकलने को नहीं दे रहा है, फैमिली नहीं, आप ये नहीं करने का, तो घर पे बैठे बैठे क्या करें. तो उनके सामने टेलरिंग आता था और ये हमारा हेयर ड्रेसिंग आता था या तो ब्यूटी. अब होता था क्या था, तभी उन्होंने काम चालू कर दिया, फिर एकदम अचानक सा मोड आया और अवेयरनेस आने लगा. इसमें काफी सारे सेमिनार्स होते गए और जिन महिलाओं ने ऐसे नाम के लिए, घर चलाने के लिए काम शुरू किया था, वो पढ़ने लगे. वो जेंट्स भी पढ़ने लगे जो टिपिकल बार्बरिंग करते थे. पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आया कि ये फील्ड बहुत आगे है, उसमें पैसा बहुत है. मैं ये भी बात करूंगा कि मैक्सिमम हस्बैंड जो उनको अपोज करते थे, आज वो उनका मैनेजर भी बन गए. मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवल हो गया. और जेंट्स एक पारंपरिक व्यवसाय था, उनके पापा बोलते थे, जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे पापा भी बोलते थे कि उदय यार मैंने जो किया तू क्या कर रहा है, तू दूसरा कुछ करना, अभी तो इतना सीखा है तो दूसरा कुछ कर. और मैं वो भी काम करता था, मतलब एक आई वाज सेल्स ऑफिसर दूसरी कंपनी में था.
तो हमारे पालकों ने, हमारे मम्मी पापा ने क्या बताया कि जो फील्ड हम कर रहे हैं उसमें तू मत जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इस फील्ड में मजा नहीं और रिस्पेक्ट हमें चाहिए। तो जब मैंने एंटर किया तो मुझे समझ आया कि नहीं, अगर पढ़ के अगर हम इसमें आते हैं तो 100% रिस्पेक्ट है और पैसा भी है, अगर मार्केटिंग का नॉलेज हो तो। फिर जैसे मैं इसमें आया, मुझे लगा कि नहीं ये फील्ड अच्छा है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो हम क्लासेस के माध्यम से, जैसे आप है, हम है, बहुत सारे सीनियर्स है जिन्होंने क्लासेस के माध्यम से इस फील्ड के बारे में अच्छाइयाँ बताना शुरू कर दिया। जो लोगों ने, पहले लोगों ने उनकी बुराइयां ही सामने रखी थी और हम लोगों ने उसको सबको नेगेटिव को देख के पॉजिटिव क्या है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। आज डॉक्टर के बाद में अगर सच्चा केयर टेकर कौन है तो हम है। साथ ही में लोग हमें एक अच्छा साइकेट्रिस्ट भी समझते हैं, नॉट ओनली हेयर ड्रेसर, हमें एक अच्छा हेयर ड्रेसर समझते हैं, आपका दोस्त समझते हैं, साइकेट्रिस्ट समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं, कितनी सारी उपाधि हमें देते हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे फंक्शंस में घर से निकलने के पहले हमें पूछा जाता है व्हाट शुड आई वेयर। हालांकि वी आर हेयर ड्रेसर, बट हमें पूछते हैं कि हम हमारा गेटअप, मतलब यहाँ तक का जो रिस्पेक्ट मिलने लगा इस फील्ड में पढ़ाई की वजह से, तब से लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई। जो एक समय में क्या करता है, तू सैलून है क्या तुम्हारा, अच्छा तू पार्लर वाली है क्या, मतलब ऐसे नजर से, ऐसे बातों से बोला जाता था। आज पूछते हैं हाँ सर आपकी अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, और वो मैडम कौन आने वाले जो मेकअप के लिए आने वाले, मतलब दौर बदली हो गया और हम लोगों ने किया, उसका हमें अभिमान भी है। अब ये है कि अभी के बच्चे 16, 17, 15, इवन 13 साल का बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो लोगों के पापा मम्मी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए कि नहीं, पढ़ाई तो हम बच्चों से करवाएंगे, बट ये आर्ट है, यहाँ पर कभी भी कोई भूखा मरने वाला नहीं है और एक स्टैंडर्ड भी है। इसके लिए वो सारे बच्चों को इस फील्ड में आने को बोल रहे हैं और बच्चे भी सामने से हमें बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ हेयर ड्रेसर, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो ये दौर तब का और अब एब्सोल्युटली चेंज हो गया। नाउ नो नीड टू कन्विंस ऑल्सो, आज किसी को कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये हमारा प्लस पॉइंट है, हमारी इंडस्ट्री का प्लस पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरह से आपने ये एक्सप्लेन किया और जो जो आपने कहा वो सही है, बिल्कुल फैक्ट है। और इस करियर की तरफ देखने का लोगों का नजरिया सही में बहुत बदला है, बहुत रिस्पेक्ट आ रहा है इस करियर के लिए। और जितने सारे कॉलेजेस होंगे, अगर ये वीडियो सब तक पहुंच रहा है तो और ज्यादा कैसे आप ये इन्वॉल्वमेंट इस ब्यूटी करियर की बढ़ा सकते हैं अपने करिकुलम में, वो जरूर देखिएगा। और इसी के साथ सर और एक सवाल पूछना था मुझे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में जो अभी फिलहाल, अभी मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, फॉर अर्बन एरियाज की ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन रूरल एरियाज में जैसे उनको सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उनको अपना गांव छोड़ के किसी सिटीज में जैसे पुणे मुंबई में अगर आना है कोर्स के लिए तो बहुत चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस करोगे सर? बेसिकली रूरल हो या अर्बन हो, इसमें एक मैंने देखा है कि जिनको खुद का सैलून, खुद का पार्लर अगर अच्छा रखना है तो वो उसको यहाँ से रखना चाहिए, यहाँ से नहीं सिटी में मेरा पैसा कमा के, उसके दिल से वो बिजनेस करने वाला चाहिए। सिंपल चीज है मैडम, हाइजीन। हाइजीन के ऊपर ना अर्बन वाले ज्यादा ध्यान देते, अभी ध्यान दे रहे, अच्छे से ध्यान दे रहे, रूरल वाले अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। उनको ऐसा लगता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, तो वो उसको प्राधान्य नहीं दे रहे कि हमारा जॉब जो है वो इतना नजदीक का जॉब है, कितने हम नजदीक क्लाइंट पे खड़े होते हैं, तो मुझे खुद को कितना क्लीन रखना चाहिए। साथ ही में अगर वो सैलून में मेरे आता है तो वो कोई चीज रखने के लिए अगर उसमें अगर कुंकर मारता है या अगर उसको पोंछता है तो दैट इज इंसल्टिंग फॉर अस। तो ये चीजें उनको नहीं समझती। आज भी मैं ये नहीं बोलूंगा किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, पर बहुत से सैलून्स वाले सिंपल चीजों पे, गांव साइड में, रूरल साइड में, कि बनियान पे काम कर रहे हैं, लुंगी पे काम करते हैं, कभी कभी कोई पंखा नहीं, इसके लिए बेचारा कैसे भी काम करता है। मैक्सिमम लेडीज आई सॉ, हमने देखा कि वो घर पे गाउन पे काम करती है। इतना आगे जाने के बाद में भी अभी भी वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, उनका खुद की मेंटलिटी का प्रॉब्लम है। चाहे तो घर पर अच्छे से रह सकते हैं, अच्छी से सर्विस दे सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा गलथान, आई मीन टू से थोड़ा सा आलसीपन हो या तो चलता है, ये वजह से वो अपना नाम खराब कर रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री का नाम खराब कर
है, अगर वो अपने आप को अच्छी तरह से रखेंगे और बिजनेस करेंगे तो उनको देखने का नजरिया क्लाइंट का भी बदली हो जाए। अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो 96 की 95 की 94 92 की बात है। मैंने जब एप्रन पहना था, व्हाइट लैब कोट सिंपल था, तभी तो एप्रन भी पता नहीं था। लैब कोट पहनने के बाद में मुझे भी लोगों ने बोला कि तू क्या डॉक्टर बन गया है क्या? मतलब जो होता है ना कि बोलने वाले बोलते हैं, अब उनको डरना या सामने से चलना, दैट इज अवर वन। तो मैंने लैब कोट के बाद में हमने कुछ अच्छे से डिजाइनर यूनिफॉर्म पहना, तो मुझे फिर से ताना आया कि तू तो यार होटल में काम कर रहा है, होटल के वेटर जैसा बना है। ऐसे ठीक फिर मैंने लंदन से होल्स्टर लाया, सीजर कोम रखने का, तो मुझे बोलते कि तुम क्या टिकट निकालते हो क्या? मतलब यहाँ तक के ताने लोग दे रहे थे। अब उन तानों से डर के अगर हम चुप बैठेंगे तो कैसे होगा? और मैक्सिमम लोग उस ताने से डर कर बिजनेस नहीं करते, फिर वो सोचते इसलिए इतना करने का, लोग तो ऐसे ही बोल रहे, और वो अपनी वही गलतियां दोबारा कर रहे, वही पान खाना, वही गुटखा खाना। तो इस वजह से इस फील्ड में अच्छे अच्छे लोगों का नाम जल्दी नहीं आता, ये गलती वालों की वजह से पूरे इस जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को गलत ठहराया जाता है। इसलिए रूरल में काम करने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हाइजीन पर ज्यादा जोर दो, सैलून को और खुद को अच्छे से रखो। आर्ट तो उनके पास जबरदस्त है, और आर्ट को कैसे पेश करेंगे उसके लिए हम जाकर उनको सेमिनार दे रहे, बट सेमिनार में भी न आने का आलस करते हैं, पैसे के लिए नहीं। अगर हम 100 रुपया भी चार्ज करेंगे तो भी अरे यार एक दिन बंद कौन रखेगा, एक दिन बंद रखने का मतलब मेरा कितना नुकसान होता है, ये उनकी मेंटालिटी है। आज भी लेडीज जेंट्स सब वही भूले हुए। अगर हम बोलते कि बस तुम्हारी छुट्टी है, आज तो आजा, छुट्टी के दिन तो सर कितने काम होते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाए कैसे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी मेरे हिसाब से रूरल अर्बन कुछ नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है लोगों का, ये मेरा ऐसा मेरी सोच है। बहुत बहुत सही कहा है सर आपने। और अभी जैसे आप बोल रहे थे कि एक दिन छुट्टी है तो सेमिनार अगर उस दिन रखते हैं फिर भी कुछ लोग नहीं आते उस दिन, तो सर इसका मतलब है कि एजुकेशन हर एक एज में, कितने भी आप पुराने इस फील्ड में हो, मतलब आपको भी काफी साल हुए सर, फिर भी आज भी अपडेट करते हैं खुद को, तो वो अपडेशन करना, इसीलिए तो हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसका आप थोड़ा सा महत्व सर समझाएंगे प्लीज सबको कि अपडेशन व्हाई इट इज नेसेसरी। अभी देखो, अभी हमारी सबके क्लासेस है, हम आज की तारीख में जहाँ पर 1-1.5 लाख भाड़ा रेंट होता है एकेडमीज का, किसी के पर्सनल, किसी के प्राइवेट, किसी के खुद रेंट, वहां पर आप 2000 और 1000 रुपए तो नहीं दे सकते हो सिखाने का। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना भी डिस्काउंट दिया, कितना भी, फिर भी हमें एकदम 1000-2000 में हम लोग क्लासेस नहीं ले सकते, जो कि लाख रुपए चार्जेस। ऐसे टाइम पे हम सोचते कि चलो ठीक है, जो हमारे पास आ रहे हैं, मुंबई में, पुणे में लोग आते हैं, वेलकम, बट जो नहीं आ सकते हम वहां पर जाके उनको सिखाते हैं। अब वो सिखाने के समय समटाइम्स फीस होती है, समटाइम्स समाज के हिसाब से अगर सेमिनार होते हैं तो फ्री में भी होते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्राधान्य दो। अगर आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, दैट इज नॉट श्योर, और ये सब लोगों को पता है। बट पढ़ने के लिए होता क्या है, जब आते हैं वो इस हम करने वाले कि वाह देखो तो क्या सिखाता है, मतलब इनका अंदर सोच ऐसी होती है कि देखो तो मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, अभी देखो ये क्या सिखाता है। वहां पर हमें उनको कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ती है और उनको पहले ब्रेन वॉश करना पड़ता है, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स दोनों। उसके बाद में फिर हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हम सिर्फ आपके लिए आए हैं, पैसा इज नॉट अ मैटर, ये जो पैसा आप दे रहे हो उसमें से भी इतना पैसा हम समाज के लिए दे रहे हैं। मतलब पूरी तरह से क्लियर माइंड करते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। लोगों की टेंडेंसी क्या हो गई पता है, आप मेरा LIC निकालते हो, आपको कितना फायदा है, बट वो ये नहीं सोचते कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये उनको पहले पॉलिश करके फिर उनको इनके दिमाग में एजुकेशन डालना पड़ता है। जैसे उनको थोड़ा एजुकेशन का जो होता है ना, एक चस्का लग जाता है ना, तो फिर वो मैंने देखा है कि 60-70% लोग एजुकेशन में आगे आ गए। 30-40%, 35% देखो ना आज अटके हुए हैं, जो थोड़ा सा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बाकी एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ रहा है, और हम हर एक यू कैन से एरिया में जाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर हमने ट्रेनिंग नहीं दी, ज्यादा पैसे में भी दी है, 7 स्टार में भी सेमिनार्स किए, और शादी के हॉल में भी। इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। फिर ये हमारा ऑनलाइन, जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, अभी लेना ऐसा है उनकी ड्यूटी है। सही बोल रहे हो सर आप। और मैंने देखा है आप कितना
हर एक जगह, छोटे छोटे जगह में जाके आपने सेमिनार किए हैं। कभी आपने ये नहीं देखा है कि सामने 5 लोग हैं, 50 है या 500 लोग हैं। आपने उतना ही पैशनेटली सबको सिखाया है। और यही आपका जो बाहर जो आपको इतने लोग चाहते हैं, उसका यही एक रीजन है। उसमें मैं भी एक हूँ। और थैंक यू। और एक चीज सर, यही इसी बारे में एक और एक चीज पूछनी है कि सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है। जैसे सिडेस्को कोर्सेज आप भी चलाते हो, हम भी चलाते हैं, तो इनका महत्व और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, या फिर उन लोगों को अगर महत्व पहुंचाना है या बताना है आपको, तो सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आज जो 10वीं पास नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मतलब कोई ग्रेजुएट से ज्यादा पैसा 4वीं पास, 5वीं पास, तो उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पैसा मिल रहा है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, हाँ, एक बात ये भी है कि उनको भले कितना भी पैसा मिला, उन्होंने कितने भी फ्लैट लिए, अगर उनको अंदर से दुख है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, ये 100% है कि मैं 12वीं पास नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो यही दुख होता है हमारे इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट्स पे। बहुत बार बहुत घमंड से बात करते हैं कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्किल। अरे आई नो एवरीथिंग अबाउट हेयर, आई एम मास्टर। बॉस, दीवार पे सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? तो वो इतना घमंड से आंसर करते हैं, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? तो मुझे कुछ भी पूछो ना, मैं तो सर्जन जैसे बात कर सकता हूँ। मैं बोला, ये तुम मैंने नहीं करने का, आपके दीवार पर सर्टिफिकेट दिखाओ, या तो गवर्नमेंट का दिखाओ, तो खुद का, या तो कोई अच्छा एकेडमी का दिखाओ, तो कुछ तो दिखाओ। एबीटीसी, सीडैस्को या फॉरेन के सर्टिफिकेट से टोमियन का नहीं, वो क्या हो गया, लास्ट मिनट पे मैंने एग्जाम नहीं दिया, या ऐसे कुछ कुछ फालतू आंसर हमको देते हैं और अपने आप को विदाउट सर्टिफिकेट भी ग्रेट समझते हैं। मैडम, आज एक बिल्डिंग में 4 पार्लर, रिया, माया, प्रिया, छाया, सब सर्टिफिकेट तो वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैंने एग्जाम नहीं दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको आज मैं बताऊं कि उदय टक्के को जो सम्मान मिला है, मुझे सिक्कों से तोला गया राजस्थान में, सिक्कों से तोला गया, गुरुवर्य अवार्ड मिला, काफी सारे अवार्ड मिले, लेकिन ये उदय टक्के तो नहीं थे, उसकी पढ़ाई को थी। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि बस पढ़ो अच्छे से, सर्टिफिकेट का ही कोर्स करो, सर्टिफिकेट तो वैल्यू है। आज आउट ऑफ इंडिया भी जाना है या कुछ बड़ा काम करना है, बैंक से लोन उठाना है, तो आप सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड थिंग, मैं सर्टिफाइड हूँ तो मैं सक्सेस से और मैं घमंड से मेरी छाती फूल जाती है कि आई एम ए सर्टिफाइड पर्सन। तो ये अपने आप को ऊंचा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या फायदा होता है वो सभी को पता है, बट मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता है बिकॉज आई एम ए सर्टिफाइड पर्सन। तो ये बहुत जरूरी है। सारे लोगों को छोटा छोटा कोर्स करके छोटा सा काम करने से अच्छा है, अच्छा कोर्स करो, इस फील्ड में बड़ा नाम करो, कोई बड़े क्षेत्र में जाके छोटी कामगिरी करोगे, उससे हमारे फील्ड में अच्छा काम करो, अच्छा से शोहरत पाओ, सर्टिफिकेट कोर्स करो। यही मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और कोर्स भी करूंगा। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन। और सभी को ये करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सर, अभी जैसे ये करंट सिचुएशन है लॉकडाउन की, अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कब खुलेगा ये लॉकडाउन या फिर सैलून कब खुलेंगे। तो आप पोस्ट लॉकडाउन जो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं हम, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे कि ये चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे करें? श्योर। सी, अभी उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता चला 22 मार्च को कि लॉकडाउन है, और तभी जो तज्ञ लोग हैं इस फील्ड में वो हमारे साथ में रहते हैं, कुछ चर्चाएं होती है, तो पता चलने वाला था कि मई तक कुछ होने वाला नहीं। इमीडिएटली मैंने एक वीडियो तभी बनाया था कि अभी आगे होने वाले प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोग आज जो झगड़ा कर रहे हैं, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। देखो, मिलना चाहिए का मतलब हम कोई सरकार से हमारे लिए नहीं मांगते। आज भगवान दुआ से जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सब अच्छे घर के लोग हैं और वो खुद का घर संभलना जानते हैं। बट हम किस लिए झगड़ा कर रहे हैं? जो आम ब्यूटिशियन है, आम हेयर ड्रेसर है, जो बार्बर है टिपिकल, जिनको मैनेजमेंट नहीं था, जिनको पास प्लानिंग नहीं थे, और अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो उनके आज खाने पीने के बाद नहीं। ये हकीकत है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वो रेशन दे रहे हैं, चलो गेहूं दिया, अनाज दिया, वगैरह, बट उनके बच्चों को बिस्किट लग रहा है, या उनके घर पे चूल्हा नहीं है, अगर माचिस भी है, मैच बॉक्स के लिए भी उनके पास पैसे नहीं, ऐसे टाइम पे उनको पैसे की कैसे मदद होगी? तो ये मैंने एक डाला था, पेटिशन भी मैंने किया, इवन पेटिशन भी मैंने किया। हालांकि मैं बहुत सारे संगठन का सेक्रेटरी हूँ, अध्यक्ष हूँ, बहुत कुछ काम करता हूँ, बट मैंने पर्सनल इसलिए डाला ताकि मुझे और संगठन मुझसे जुड़े। क्योंकि अभी क्या होता है कि एक संगठन के साथ में दूसरे संगठन जुड़ती नहीं है,
तो इस माध्यम से वो पेटिशन भी डाल दिया था कि लोगों का ध्यान जाए, सरकार का ध्यान जाए। बट सरकार के बारे में भी गलत बोल के मतलब नहीं, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं कोरोना पे बहुत स्ट्रांग, तो वो मदद करेगी तो करेगी, बट हम संगठन के माध्यम से भी उनको मदद कर रहे हैं। अब ये मदद एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात है एट द सेम टाइम हमारे फील्ड के बच्चों को, हमारे फील्ड के लोगों को कैसे रहना है, सैनिटाइजेशन कैसे करना है, खुद की कैसे ख्याल रखना, सैलून का कैसे ख्याल रखना, क्लाइंट आएंगे तो पहले क्या करना, ये सारी बातों को भी बाकायदा लिखा गया है। और आपको पता होगा कि BWSSC ने काफी सारे अच्छे रूल्स भी निकाले हैं, तो हम वो रूल्स उनके सामने रख के मैक्सिमम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज ही से हाथ में हैंड ग्लोव्स डाल के आप मुंह पे फेस शील्ड, इवन मास्क सब करके प्रैक्टिस चालू करो, हाउ टू ऑपरेट द सीजर, हाउ टू ऑपरेट द यू कैन से थ्रेडिंग पार्ट, आईब्रो, हाँ थ्रेडिंग पार्ट। तो ये मैंने उनको अभी से बोल दिया कि प्रैक्टिस चालू करो, फिर अचानक आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी कभी आपके आंखों सब में फॉग आएगा, कभी कभी हाथ से सीजर गिरेगी, ये सब होने वाला है। कभी ये गलती मत करना। तो अभी से मैक्सिमम जगह पर हम लोगों ने प्रैक्टिस भी चालू कर दी है, ताकि उस टाइम पे क्लाइंट आने के बाद में कितनी दूरी पर बैठना चाहिए, फिर वो क्या बोल सकता है, आपके ऊपर कितना झगड़ा कर सकता है, अरे तुम मुझे क्या समझते है, तो उसके लिए आप आंसर क्या दोगे, यहाँ तक की पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। हम उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग कर रहे हैं और सबों को भी हम हाइजीनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन में। वाह, दिस इज वेरी गुड। और ये बहुत अच्छे गाइडलाइंस है, शायद हम सभी को ये फॉलो करनी चाहिए कि अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद तुरंत आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर और बिजनेस आपका आगे जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एडवाइस दिया है सर आपने। सर बेसिकली आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि ऐसे कौन से वेज है जिससे पोस्ट लॉकडाउन लोग सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारे सर्विसेज तो पता नहीं लॉकडाउन के बाद लोग लेना शुरू करेंगे या नहीं। जैसे कलर के ऊपर या फिर थ्रेडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा लोगों का करना, स्पेशली लेडीज। तो ऐसे कौन से सस्टेनेबल सर्विसेज हो सकते हैं जो कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पोस्ट लॉकडाउन? एक मेरा एक मानना है, अभी तक जो पोस्ट जैसे लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं, ब्यूटिशियंस, तो हम देखो हम चुप शांत बैठे, हम किसी के घर पे जबरदस्ती नहीं जा रहे कि भाई चलो मैं बाल काटने को आ रहा हूँ, या हमारी ब्यूटिशियन गली गली पे नहीं घूम रही, लेकिन लोग है ना जितनी बातें करते हैं उतने ही लोग फोन करके घर पे बुला। यहाँ पर एक साइड में वो दिखा रहे कि नहीं ये सैलून में ये होगा वो होगा, जाना मत, और एट द सेम टाइम फोन करके अरे बाबा जी घर पे आ जाना। ये एक लोगों का फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं भी दिखा रहे और जरूरत है भी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ही हम भाव कर रहे हैं, जितना हम उसको हाइप दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जैसे सैलून खुलेंगे सारे लोग ईमानदारी में अपने सैलून में आएंगे, तब आज उनको डर नहीं तो उनको कल क्या डरने लगेगा। हाँ डरना हमें चाहिए, वो आदमी अच्छा है या नहीं है, तो हमें हमारी प्रिकॉशन देनी है। लोगों का तो सोचना ही नहीं चाहिए, मैं मेरा फ्रैंकली, क्योंकि पहले बहुत बार हम लोगों ने सोचा कि लोगों को ये करो वो करो, लेकिन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आज किसी को भी फोन करके घर पे बोला कि उसकी बीवी के बाल कटवा रहे हैं, बच्चे के कटवा रहे हैं, ग्रैंडफादर्स के, मतलब फैमिली के पूरे आप घर पे बुला के कटवाते, मतलब आप कितने सीखे हुए, मतलब आपको जरूरत है तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने का, प्रिकॉशंस हम लेंगे हमारे सैलून में आए हुए क्लाइंट्स को किस तरह से बाजू में बिठाने का, किस तरह से क्या डिस्टेंस रखने का, वो हम करेंगे, ये मेरा मानना है। और हम हमारे लोगों को अच्छी तरह से ही ट्रेन करेंगे, लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और ये ऐसे ही अगर हम लोग एक्शन ले और इसी तरह से अगर हम काम करेंगे तो पोस्ट लॉकडाउन हमें चैलेंजेस नहीं लगेंगे, और हम लोग जैसे रेगुलर सैलून चलाते आ रहे हैं आज तक, हम उसी तरह से आगे भी चलाएंगे। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखना, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं या हमें खुद को बहुत वो सही लगते हैं, ऐसे रेगुलेशंस के ऊपर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू सर, दिस इज रियली अ वेरी गुड एडवाइस, और हम सभी, मैं भी खुद ये सारे एडवाइस को जरूर फॉलो करूंगी। सर हमारे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, सोशल अवेयरनेस ग्रुप बनाया है, ताकि मुझे दिन तकरीबन 40 से 50 कॉल तो ऐसे ही आते हैं कि सर रेंट का क्या करें। अभी इसके जवाब मेरे हाथ में भी फिलहाल नहीं है। फिर पूछते हैं कि सर मैं ये क्या, मतलब हजारों प्रॉब्लम्स बेचारे मुझे फोन करके पूछते,
ऐसे टाइम पे मैं भी थोड़ा सा बोल बोल के थक गया हूँ, तो मैंने वो ग्रुप बना दिया है सोशल अवेयरनेस, जहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं और मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली नितिन गडकरी साहब से हमारी मीटिंग हो गई थी, जूम मीटिंग हो गई थी, उन्होंने हमें क्या बताया वो सारा मैंने उसमें डाल दिया है कि आप MSME के मेंबर बन जाओ, रजिस्टर बन जाओ, कि आपको उसका बिजनेस के लिए फायदा है। आज मेरे ख्याल से रेंट के ऊपर भी चर्चा हो गई थी, जैसे कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो, मतलब मालिक आपको फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो ऐसे काफी सारे जवाब इस फील्ड के बारे में मैंने दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल अवेयरनेस के ग्रुप पे जाके आप रजिस्टर करो, आपको सारे जवाब भी मिलते जाएंगे और आगे के अपडेट्स भी मिलते जाएंगे। वेरी गुड इनिशिएटिव सर। और मैं भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उनको ये जरूर कहूंगी, और कुछ भी सवाल रहेंगे तो वहीं पे हम पूछेंगे आपको। और सर अभी जैसे ये इंटरव्यूज होते हैं, हम इसमें एक छोटा सा एंटरटेनिंग ऐसे एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं। तो ऐसे कुछ 3 या 4 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो कि रैपिड फायर राउंड के हैं। उसमें मेरा सबसे पहला सवाल आपको है, व्हाट मेक्स यू एंग्री? आप कभी गुस्सा होते हो? झूठ पर तुरंत एंग्री, तुरंत। जैसे मुझे लगा कि ये सब झूठ चल रहा है, गलत चल रहा है, मेरे पेशेंस खत्म हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ये एक चीज हमें पता चली आज। और सर हैप्पीनेस क्या है आपके लिए? When everybody is happy, I'm happy। सब जगह पर अच्छा चलता है, घर से लेके सालों से लेके दोस्तों का, जो जो हमारे फील्ड में है उनका सबका अच्छा चल रहा है, तो एक अंदर से खुशी आ जाती है। वेरी गुड। सबसे मेमोरेबल ऐसे आपको जो बहुत ही याद रहा है अब तक, ऐसा आपका सेमिनार कौन सा था सर आज तक के आज की डेट में? हमारे समाज में एक प्रोग्राम था, एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर था। 50,000 पीपल हो गए दैट टाइम, 50,000 लोग थे। और मुझे उन्होंने बताया कि एक बलूचीदारी, आपको पता होगा कि बलूचीदारी, जैसे कि अनाज लेना। पहले ऐसा होता था ना कि पैसा नहीं मिलता था काम करने के टाइम पे, अनाज मिलता था या कुछ। तभी उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप एक सेमिनार करो, और मैं स्टेज पे खड़ा था। स्टेज बहुत बड़ा स्टेज था, सामने 40 से 50,000 लोग थे, और मैंने सिखाना चालू कर दिया। तब जो जिनको नहीं समझ में आ रहा था तो वो बोले, उदय भाऊ बंद करो, आपका ये बंद करो, हमको नहीं चलने वाला, आप बंद करो। और बहुत गुस्सा हो गए थे। मैंने भगवान का नाम लिया, मम्मी डैडी का याद किया तुरंत, वो ऐसे ही था। और मैंने बोला कि ये लंदन की सीजर मेरे हाथ में है 20,000 की, मैं अब भी फेंकता हूँ, आगे से कभी सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए झगड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको पैसा मिलना चाहिए, ना ही अनाज। उतने में दूसरे साइड से आवाज है, उदय भाव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक वाक्य ऐसा था उस दिन की 50,000 लोग मेरा क्या कर सकते थे मुझे पता नहीं, बट मैं बच गया बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, मम्मी डैडी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद। तो वाक्य की वजह से मैं और स्ट्रांग बन गया, और काफी सारे सेमिनार, तो वो सेमिनार मैं नहीं भूलूंगा। और दूसरा, राजस्थान में 1500 लोगों ने जब मुझे सिक्कों से तोड़ा गया, तब मेरे मम्मी डैडी रो रहे थे मुझे देखकर। वो एक वाक्य था। बहुत सारे वाक्य, पर ये दो तो यहाँ तक यहाँ बैठे पूरे तरह से। So lovely, that's so nice। सर आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबी बहुत कुछ है ऐसे। मैं बहुत, मतलब मैं एक्चुअली, मुझे क्रिकेट ज्यादा पसंद था, टेबल टेनिस पसंद था, और गाने सॉन्ग। ये अगर हमारे फील्ड से बाजू में हो तो ये 3 चीज मुझे ज्यादा पसंद है, क्रिकेट, टेबल टेनिस एंड गाना सुनना, एवरीथिंग। ओके ओके, ग्रेट। और ऐसी कौन सी चीज जो पोस्ट लॉकडाउन आप अपने वाइफ के लिए शॉपिंग करना चाहोगे? ग्रेट बहुत बड़ा, एक नहीं हो सकती ना वो। नहीं, मैं एक लक मेरा अच्छा है कि जब से मैंने शादी की है तब से कोई फरमाइश नहीं थी, और भगवान की दुआ से उसको फरमाइश करने दिया ही नहीं। वो इतना सपोर्ट मुझे भगवान ने किया, कभी उसकी फरमाइश मुझ तक आई नहीं। मतलब उसको फरमाइश के पहले वो सारी चीज मिलती गई, और मैं भगवान से वही बोलूंगा कि उसके मुंह से निकलने के पहले मुझे समझने दो, एंड आई विल कंप्लीट दैट फरमाइश। So Harshada is so lucky। आई एम ऑल्सो वेरी मच लकी। ओके, तो यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है सर। अगर आपको कोई दर्शकों को कुछ और कहना है आपकी तरफ से तो आप प्लीज कहिए। श्योर, मुझे इतना ही बताना है कि 2 महीने होने को आए हैं, हम
कोई बहुत हमारे से कोई बहुत जन टूट चुके हैं, मैं मानता हूँ, कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं मुझे मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को संभलने के सिवा दूसरा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो एंड के लिए पेशेंस मत खत्म करो, जैसे भी होगा अपने आप को एडजस्ट करो, किसी के घर पे जाके किसी की सेवा मत करो। ब्यूटिशियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एजेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे जन सैलून चुपचाप खोल रहे हैं, हमारी बदनामी उसमें हो रही, तो पेशेंस रखो, ये समय है वो भी निकल जाने वाला है। तो जितना आप अच्छे से रहोगे, फैमिली को प्यार करो, फैमिली के साथ में रहोगे, उतना आपकी फ्यूचर की जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। तो थोड़े के लिए जरा भी मारामारी ना करो। अगर सचमुच किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे बात करें, आपसे बात करें, हम 99.9% उनको प्रॉब्लम्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे नहीं हुई तो हम दूसरी संगठन से सहकार्य लेंगे, बट कुछ ना कुछ तो उनके लिए जरूर करेंगे। बट अपने आप को टूटने मत दो, इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत सही कहा है सर आपने, और मुझे पता है कि इस एडवाइस को लोग फॉलो करेंगे। और आप प्लीज घर पे ही रहो, सर जैसे बोल रहे हैं वैसे घर जाके सर्विसेज मत दो। आपके एक दो सर्विसेज की वजह से अगर आपके लाइफ में, आपके लाइफ को या आपके फैमिली के लाइफ को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अभी फिलहाल हमारे लिए लाइफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो 2 महीने के बाद ये सारा बिजनेस हमें जैसे पहले मिलता था उसी तरह से मिलता रहेगा। और थैंक यू सो मच सर, आपके सारे एडवाइस हम फॉलो करेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम। My pleasure. Thank you so much for calling me. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम तुरंत ही ये वीडियो सोशल मीडिया और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और सभी जगह पे डालेंगे, और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखने जरूर कहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।